In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing well. May Allah keep us all in best and favorable circumstances. I am Samira Idris, your English teacher. Dear students, in today's lecture, we are going to do warm-up activity of unit number 2 at the zoo. After that, we will do the reading of this unit and then we will solve exercises. Dear students, now we are going to start warm-up activity. You may pause the video right here and bring your textbook. Open your textbook at page number 23. Look at the pictures. Can you name the animals? Think about it. Where have you seen these animals? At home, on the road, or in a zoo? There is a lion in the first picture. Yeah, you are right. Look at the second picture. Yes, there is a monkey. There is a snake in third picture. Yeah, you are right. Okay, now look at the fourth picture and think about it. Which is this animal? Yes, this is a peacock. The last picture, there is a huge animal. यूजुअली आप इन एनिमल्स को जू में देखते हैं और आप जब जू में विजिट करते हैं तो आप यूजुअली इस एनिमल पे राइडिंग भी करते हैं. तो कौन सा एनिमल है ये? यस, दिस इज एन एलिफेंट. Dear students, I hope you have enjoyed the warm-up activity. Here is the answer key for your convenience. Dear students, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और इस आंसर की को, इस वार्म अप के सॉल्यूशन को आप अभी सॉल्व करेंगे. आप यहाँ पे एनिमल्स के नेम्स को राइट डाउन करेंगे. ओके? Dear students, now we will do reading of textbook at page number 23 and 24. Dear students, now we are going to start our reading. Reading start करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, इस स्टोरी में हम एक फैमिली के बारे में पढ़ने लगे हैं जो कि विजिट करने गए हैं जू में. And before we get started the reading, we will underline the words mentioned in the story. For example, first word जो आपको नजर आ रहा है रेड लाइन से अंडरलाइन हुआ हुआ है, that is today. Second word is zoo. Next word है थर्ड लाइन में look. फोर्थ लाइन में वर्ड है beautiful. And in the last line word है swinging. और उसके बाद वर्ड है to and fro. To and fro का मीनिंग आपको मैंने बताया था. This is a movement from one side to another side. अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Today we are at the zoo. Today we are at the zoo. My father, mother and sister too. My father, mother and sister too. Look, beautiful birds and peacocks. Beautiful birds and peacocks. Monkeys swinging to and fro. Monkeys swinging to and fro. Dear students, now turn your book at page number 24. First of all, we are going to underline the words mentioned in the story. Then we will start our reading. आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ इन वर्ड्स की रीडिंग करेंगे
and you can hold your pencil and underline these words as well. First word है buy. Buy का मीनिंग मैंने आपको बताया था. Buy means किसी चीज को खरीदना. Next word is ice cream. Second line में word है look. In third line there is a word licking. Licking means to tasting with a tongue. किसी चीज को जब हम टंग से टेस्ट करते हैं तो उसको हम licking बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट लाइन में ड्रिपिंग. ड्रिपिंग मैंने आपको बताया था किसी चीज के ड्रॉप्स गिरते हैं मेल्ट होकर तो उसको हम कहेंगे ड्रिपिंग. सेकेंड पैसेज की ये लास्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड है नियर. इस पेज पे ये फर्स्ट पैसेज है लेकिन ये स्टोरी का सेकेंड पैसेज है. नियर को अंडरलाइन कर लिया आपने. नियर उस चीज को कहते हैं जो हमारे पास हो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है केज. केज का आपको पता ही होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा. घर में हम पैरट्स रखते हैं, स्पैरोज रखते हैं, तो उनको हम केज में रखते हैं. लास्ट वर्ड है इस लाइन का रोर. रोर के बारे में हमने पढ़ा था. दिस इज अ साउंड ऑफ अ लाइन. नेक्स्ट पैसेज में देखें, लुक को हमने ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिया हुआ है इसलिए हम दोबारा नहीं करेंगे. नेक्स्ट वर्ड है वॉकिंग. टू एंड फ्रो अगेन अंडरलाइन करेंगे आप लोग. मीनिंग आपने इसका लर्न करना है. मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. नेक्स्ट है एंग्री. उसके बाद है हंग्री. एंग्री मीन नाराज होना एंड हंग्री मीन्स भूख लगना. उसके बाद वर्ड है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है उसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं. जैसे लाइन एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है और उसका ऑपोजिट अगली लाइन में है वीक. लास्ट वर्ड है जिराफ. जिराफ इज द नेम ऑफ एन एनिमल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग. फर्स्ट लाइन से रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं. ऑल ऑफ यू विल रीड आफ्टर मी. वी बाय आइसक्रीम. वी बाय आइसक्रीम. Look, my sister is licking her ice cream. You can look at the picture. The girl is licking an ice cream. Her ice cream is dripping. Her ice cream is dripping. Near the lion's cage, we hear a roar. Look, he is walking to and fro in the cage. कौन वॉक कर रहा है केज में? लाइन वॉक कर रहा है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. नेक्स्ट लाइन है एंग्री और ही इज हंग्री. एंग्री और इज ही हंग्री? लुक, ही लुक्स सो स्ट्रॉन्ग. ही लुक्स सो स्ट्रॉन्ग. आई लुक सो वीक. आई लुक सो वीक. कम हियर. See the yellow and brown giraffe. The yellow and brown giraffe. Dear students, this is the last passage of the story. First word is quickly. आप अंडरलाइन करेंगे इस वर्ड को. नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइप्स. स्ट्राइप्स का मीनिंग आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. जीब्रा की बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं एंड देयर इज अ जीब्रा इन दिस पिक्चर. यू कैन लुक एट दिस एनिमल. आप देख रहे हैं जीब्रा पे स्ट्राइप्स है उसकी बॉडी पर. नेक्स्ट है नीट. नेक्स्ट वर्ड है टिकट्स. आपको पता ही है जब भी हम किसी पार्क में जाते हैं, कोई हमने राइड लेनी होती है तो उसके लिए हम टिकट्स परचेज करते हैं, टिकट्स खरीदते हैं. नेक्स्ट वर्ड है राइड. उसके बाद है साइड. आपको याद होगा मैंने आपको एक लेक्चर में राइमिंग वर्ड्स के बारे में बताया था. द वर्ड्स विच हैव सेम साउंड. तो आप यहां पे देख सकते हैं राइड का राइमिंग वर्ड क्या है? साइड. सेम साउंड के वर्ड हैं ये. नेक्स्ट वर्ड है क्लाइम. क्लाइम मीन्स टू गो अप. मैंने मीनिंग आपको बताया था. क्लाइम का मीनिंग है ऊपर चढ़ना. सेकेंड लास्ट वर्ड है हर्ट. हर्ट मीन्स जब किसी को चोट लगती है, उसे पेन फील होती है तो वो हर्ट हो जाता है. लास्ट वर्ड है फन. फन का मीनिंग क्या था? एंजॉयमेंट. जब आप एंजॉय करते हैं, किसी पार्टी पे जाते हैं तो आप फन करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. ही इज सो टॉल.
कौन टॉल है? जिराफ टॉल है। आप देख रहे हैं, लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे जिराफ नजर आ रहा है आपको, और जिराफ कैसा है? बहुत ज्यादा टॉल है। आई लुक सो शॉर्ट, अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप क्या लगेंगे? जिराफ के आगे बहुत ज्यादा शॉर्ट लगेंगे। कम क्विकली, लुक, द ज़ीब्रा हैज स्ट्राइप्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। द ज़ीब्रा हैज स्ट्राइप्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, 2 कलर की स्ट्राइप्स हैं ज़ीब्रा की बॉडी पर, ब्लैक एंड व्हाइट। ही लुक्स सो नीट, ही लुक्स सो नीट, ज़ीब्रा देखने में आपको कैसा लग रहा है? बहुत नीट लग रहा है, बहुत टाइडी है उसकी सारी लुक्स। नेक्स्ट है, फादर इज बैक विथ टिकट्स फॉर द एलिफेंट राइड। क्या करना पड़ेगा फैमिली को? जो किड्स हैं उन्हें टिकट्स परचेज करनी पड़ेंगी और फिर वो एलिफेंट पे राइड करेंगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर ऑन द एलिफेंट? एलिफेंट पे 4 चिल्ड्रन हैं, देयर आर 4 चिल्ड्रन सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैक, और वो क्या कर रहे हैं? एलिफेंट पे राइडिंग कर रहे हैं। कम दिस साइड, कम this side, look, I'm going to climb this big elephant. I am going to climb this big elephant. क्या करने लगा है किड? जो बॉय है वो एलिफेंट पे क्लाइंब करेगा, एलिफेंट के ऊपर चढ़ेगा। Who can get hurt by an ant? Who can get hurt by an ant? इसका क्या मीनिंग है? जो एलिफेंट है वो काफी बिग एनिमल है, लेकिन फिर भी जब उसको एक एंट बाइट करती है, उसे काटती है, तो एलिफेंट को भी पेन फील होती है और वो हर्ट हो जाता है। लास्ट सेंटेंस है, बीइंग एट द जू इज फन। बीइंग एट द जू इज फन, फैमिली ने क्या किया है? बहुत ज्यादा एंजॉय किया है जू के विजिट को, वहां पे बहुत ज्यादा फन किया है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस स्टोरी को। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है और वर्ड्स को भी अंडरलाइन करना है। ओके Dear students, we have done the reading of the story, Alhamdulillah, and now we are going to solve very easy exercises. So turn your book at page number 25. Part A. Answer the following questions in your notebooks. Where is the family? First question is, where is the family? Family is at the zoo. Question number 2 is, which animal was swinging on the tree? Which animal was swinging on the tree? The animal is monkey. Third question is, what did children eat at the zoo? What did children eat at the zoo? You supposed to tell the name of the thing? Yes, that was an ice cream. Fourth question is, why did father buy tickets? Why did father buy tickets? The answer is for the elephant ride. For the elephant ride. Dear students, for your convenience, here's the answer key of part A, and you can solve this part on your book as well. Dear students, now we are going to solve part B. Who are we talking about? Number 1, has black and white stripes. एनिमल का नेम आपने बताना है which has black and white stripes. Yes, this is a zebra. Second, licking ice cream. स्टोरी में हमने रीडिंग की है. Who was licking ice cream in the story? Yes, the sister is licking ice cream in the story. Third, angry or hungry. Which animal was angry or hungry in the story? Yes, this was a lion. Number 4, tall, yellow, brown. Which animal is tall, yellow and brown? Yes, this is giraffe.
Now look at the second part. Let's look. There is a pink box for you. Here are the words mentioned in the pink box. First word is we. Second word is are. Third, here. Fourth word is this. Fifth word is going. Sixth word is big. And the last word is an. Now look at the words in the pink box and complete the following. इन वर्ड्स को आपने कंप्लीट करना है. नीचे जो गिवन ब्लैंक्स हैं उसमें जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको आपने फिल करना है. Dear students, for your convenience, here's the answer key of part B. You may tally your answers and you can solve this part on your book. आप इस part को book पे ही solve करेंगे. And let's look, आपका homework है. The first one is done for you और बाकी की जो blanks हैं आप उसको fill करेंगे. Dear students, now I am going to assign your homework of textbook. Do reading of page number 23 and 24. Complete the part. Let's look at page number 25. I hope all of you will do your homework in time. Thank you.